Hello students of class 12th, I welcome you in today's English literature lecture. Today I shall start a new poem, The Song of the Free, written by Swami Vivekananda. Today I shall take its first part. Let us know a little bit about the poet Swami Vivekananda. Swami Vivekananda was born on Monday, January 12, 1863, in a well-known family in Calcutta. His earlier name was Narendranath Dutt. His mother's name was Bhuvaneshwari Devi. She was well-educated lady. He got exceptional memory and unlimited love for humanity from his mother. He passed high school from a famous institute of Pandit Ishwar Chand Vidyasagar. He graduated in 1884 from Kolkata University. He came into contact with Sri Ram Krishna Paramhamsa in 1881. He became his disciple and devoted himself to the propagation of his guru's teachings. He went to United States of America in 1893 and participated there in the Parliament of Religions. He delivered a historic speech in the Parliament in Chicago. He died on 4th July 1902 at the age of only 39 years. Vivekananda was a name of action as well as a thinker. He founded the Ramakrishna Mission and preached the gospel of Hinduism in Japan and England. He delivered many lectures on Hindu philosophy. He also went to Japan and England to deliver his lectures. He was not only a patriot but also a social reformer. His main literary works are Raja Yoga, Karma Yoga and Bhakti Yoga. तो बच्चों, ये हैं स्वामी विवेकानंद जी, जिन्होंने द सॉन्ग ऑफ द फ्री लिखा हुआ है। तो ये हमारे लिए, हमारे देश के लिए एक बहुत ही विशेष पर्सनालिटी हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये एक बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर थे, यानी समाज सुधारक। और जो हम लोगों के विद्यालय के बगल में रामकृष्ण मिशन है, इसके फाउंडर स्वामी विवेकानंद जी ही थे। और रामकृष्ण मिशन का फाउंडेशन क्यों इन्होंने डाला? क्योंकि श्री रामकृष्ण परमहंस को 1881 में इन्होंने अपना गुरु मान लिया और उस गुरु के बताए हुए रास्तों पर चल करके उन्होंने उनके शब्द, उनकी बातों का प्रचार और प्रसार रामकृष्ण मिशन के माध्यम से किया। तो ये एक ऐसा मिशन है जो समाज को सुधारता है। इसे हिंदुइज्म को विशेष महत्व देने वाले स्वामी विवेकानंद जी का जन्म सोमवार के दिन जनवरी 12, 18
1963 में एक बहुत अच्छे परिवार में हुआ था। इनकी माँ बहुत ही शिक्षित थी, जिनका नाम भुवनेश्वरी देवी था, और इनका पहले का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। इनको इनके शिक्षा दीक्षा बहुत ही अच्छे विद्यालय पंडित ईश्वर चंद विद्यासागर का विद्यालय था, वहाँ पर दी गई हाई स्कूल की शिक्षा। और उसके बाद ग्रेजुएशन इन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय से किया। और इनकी याद करने की क्षमता बहुत ज़्यादा थी, यानी इनकी जो मेमोरी थी, इनका जो दिमाग था, वो बहुत ज़्यादा तेज़ था। ये इंसानियत के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते थे, इतना जज्बा उनके अंदर था। वो इस विषय को अपने जो गुरु थे, गुरु के बातों को लेकर हिंदुत्व के बारे में वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका भी गए। वहाँ पर रिलीजन ऑफ पार्लियामेंट में वहाँ उन्होंने अपनी स्पीच भी दी, पार्लियामेंट इन शिकागो में, जो बहुत अधिक विषय महत्व रखती है। और उनका देहांत, ये हमारा सबका दुर्भाग्य है, हमारे देश का दुर्भाग्य है कि मात्र 39 साल की उम्र में उनका देहांत 4 जुलाई 1902 को हो गया। ये एक योगी के समान थे, ये योग में बहुत अधिक विश्वास रखते थे। इनके द्वारा लिखा गया राजयोग, कर्म योग और भक्ति योग बहुत अधिक प्रसिद्ध हुआ। अब चलिए थोड़ी सी कविता के बारे में जानकारी ले लेते हैं कि द सॉन्ग ऑफ द फ्री में किसके बारे में बताया गया। द पोएम द सॉन्ग ऑफ द फ्री, composed by Swami Vivekananda, discloses his faith in divine character and its ultimate goal on earth. He says that human life is full of sufferings and difficulties, yet we should not be disheartened. The world is full of pain and misery, but one who believes in God is not afraid of all these. According to the poet, Godhood is the real aim of human life. Therefore, he cannot be shaken by sufferings and failures. The ups and downs of life give him an opportunity to show his best powers. It is our duty that we should have faith in our divine soul in all circumstances. इसका अर्थ है कि जीवन में अनेक कष्ट आते हैं। स्वामी विवेकानंद जी इस कविता में प्रेरणा देते हैं कि इन कष्टों से कभी विचलित ना हो, भगवान पर भरोसा रखकर अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते चलो। मुझे आशा है बच्चों ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने पोयम की तरफ। तो पहला स्टैंजा, द वुंडेड स्नेक इट्स हुड अनफर्ल्स, द फ्लेम्स स्टार्ड अप डथ ब्लेज, द डेजर्ट एयर रिसाउंड्स द कॉल्स। इसका अर्थ है घायल कर दिया गया सांप अपने फन को फैला लेता है, यानी वो बहुत गुस्से में आ जाता है। यदि अग्नि को कुरेदा जाए तो उसमें लपट भड़क उठती है, यानी यदि कोई अग्नि है वो शांत हो रही है और उसको एक बार फिर से कुरेद दिया जाए, उसको डिस्टर्ब किया जाए, तो उसके अंदर से आग की लपटें दोबारा निकलती हैं। जब घायल सिंह क्रोध से दहाड़ता है तब रेगिस्तान की हवा उससे गूंज उठती है। तो ठीक इसी प्रकार से यदि कोई शेर है वो घायल हो गया है तो वो अब बहुत ज़ोर से दहाड़ता है, इतनी तेज़ दहाड़ता है
कि पूरे रेगिस्तान में उसकी आवाज़ या उसकी दहाड़ सुनाई पड़ती है। Of heart-struck lion's rag, the cloud puts forth its deluge strength. When lightning cleaves its breast, when the soul is stirred to its inmost depth, great ones unfold their best. अब इसके आगे देखिए, जब आकाशीय बिजली बादल का सीना चीर देती है तो बादल अपनी बाढ़ लाने वाली शक्ति का प्रदर्शन करता है। जब आत्मा को उसकी सबसे अधिक गहराई तक छेड़ दिया जाता है तो महान जन अपने सर्वश्रेष्ठ यानी योग्यता का उद्घाटन करते हैं। Let eyes grow dim and ears grow faint, and friendship fail and love betray. Let fate its 100 horrors send, and clotted darkness block the way. अब इनका अर्थ है, आँखें कमज़ोर होती हैं तो हो जाने दो, हृदय निर्बल होता है तो हो जाने दो, मित्रता विफल होती है तो हो जाने दो, और प्रेम में यदि धोखा होता है तो हो जाने दो। भाग्य 100 परेशानियां भेजता है तो भेजने दो, यदि घना अंधेरा राह को रोकता है तो रोकने दो। यानी कितनी भी कठिनाई, कितनी भी परेशानी, कितने भी कह सकते हैं कि स्वार्थपरक लोग सामने आते हैं आपके जीवन में, आने दो। And nature wear one angry frown to crush you out, still know my soul, you are divine, march on and on, nor right nor left but to the goal. और यदि प्रकृति तुम्हें नष्ट करने को अपनी भ्रिकुटी चढ़ा लेती है तो चढ़ा लेने दो, मेरी आत्मा जान ले कि तू दिव्य है, निरंतर आगे बढ़ती चल, न दाएं मुड़ न बाएं, बढ़ती चल सिर्फ लक्ष्य की ओर। तो देखिए, इस पोयम में स्वामी विवेकानंद जी ये कहना चाह रहे हैं कि क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी बड़े जोश वाले व्यक्ति थे, तो उसी तरह की कविता भी इन्होंने लिखी है कि यदि सांप की तरह आप घायल हो जाएं तो करना क्या है, फन फैला लेना है, यानी अपने आप को बचाव के लिए तैयार कर लेना है। यदि अग्नि को कुरेदा जाए तो उसमें से लपटें निकल आती हैं, तो अग्नि को कुरेदने पर यदि लपटें निकलती हैं तो क्या आपके अंदर जोश अग्नि से कम जोश है? आपके अंदर भी वो जोश है। यदि आपको कोई छेड़ता है, कोई परेशान करता है, तब आप क्या करते हो? आप उसका सामना करने के लिए, उसको काउंटर करने के लिए आप तुरंत खड़े हो जाते हो। जब घायल सिंह क्रोध से दहाड़ता है तब रेगिस्तान की हवा उससे गूंज उठती है। यानी जब आपको सबसे अधिक परेशान किया जाता है तब आप क्या करते हो? अपनी पूरी शक्ति के साथ संसार के सामने आते हो, ये दिखाने के लिए, ये बताने के लिए कि मैं कमज़ोर नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि आपकी आत्मा बहुत शक्तिशाली है। शारीरिक रूप से भले ही आप कमज़ोर हों, मानसिक रूप से भले ही आप कमज़ोर हो गए हों, प्रकृति ने आपको तोड़ डाला हो, परेशानियों ने आपको घेर रखा हो, लेकिन फिर भी जिस तरह यदि आकाश में जो बिजली चमकती है वो बादल का सीना चीर देती है अगर, तो बादल भी क्या करता है? इतनी तेज़ी से बरसता है, इतनी ज़्यादा तेज़ी से बरसता है कि वो पृथ्वी पर बाढ़ ला देता है, यानी अपना सर्वश्रेष्ठ दिखा देता है।
तो उसी तरह से आपका भी आत्मा है। जब आपको कोई परेशान या कोई छेड़ता है या आपको कोई नीचा दिखाने का प्रयास करता है, तब आपकी अंतरात्मा क्या करती है? पूरे जोश के साथ जो आपका टैलेंट है, जो आपकी योग्यता है, उसको बाहर निकालती है समाज में जीवित रहने के लिए, समाज में अपनी स्थिति, अपना एक व्यक्तित्व स्थापित करने के लिए। अब यदि आपकी आंखें कमज़ोर हो जाएं, यानी समय के साथ यदि धूमिल दिखने लगे, यदि हृदय निर्बल हो जाए, हृदय भी कमज़ोर पड़ जाए, यदि कोई मित्र भी आपका साथ ना दे, आपका प्रेमी भी आपको धोखा दे जाए, यानी जो सबसे ज़्यादा सहायता जिससे आप आशा करते हो वो भी आपको छोड़ दे, ऐसी स्थिति में ये सारी परेशानियां तो आएंगी, क्योंकि भाग्य परेशानियां लाता है। लेकिन उस घने अंधेरे के सामने खड़े रहने का साहस अपने अंदर ले आइए, क्योंकि अंधेरा एक न एक दिन छटेगा और उजाला आएगा। तो यदि प्रकृति भी आपको नष्ट करने में लग जाए, तो भी आप अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर, अंतरात्मा की शक्ति के साथ आगे बढ़ते चलिए, ना दाएं देखें ना बाएं देखें, क्योंकि दाएं और बाएं में ऐसी चीज़ें हैं जो आपको विचलित करेंगी समाज में। तो आपको दाएं या बाएं नहीं देखना है, उन आकर्षक चीज़ों से आकर्षित नहीं होना है, केवल आपको पूरी शक्ति के साथ अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते चलना है, आगे बढ़ते चलना। तो ये थी कविता द सॉन्ग ऑफ द फ्री, यानी जो व्यक्ति आज़ादी चाहता है, आज़ाद रहना चाहता है, तो क्या करना है उसको अपने अंतरात्मा पर विश्वास रखना चाहिए, भरोसा रखना चाहिए। चलिए बच्चों, तो ये कविता यहाँ समाप्त होती है। अब हम आपको इसके ग्लॉसरी में ले चलते हैं। दैट इज़ हार्ड वर्ड्स। wounded, injured. The wounded unfurls. The snake shows its hood only when it is hurt. देखिए, सांप फन तभी फैलाता है जब उसे चोट लगती है। हुड, broadened head of a snake. सांप के फन को हुड कहते हैं। Unfurls, opens. Blaze, burst into fire. Resounds, echoes. echo जो ध्वनि आती है ना। Heart struck, deeply wounded. Rag, great anger. Puts forth, presents. Deluge, flood. Cleaves, tears or breaks. Inmost, deepest. Betray, cheat. Horrors, fears. Clotted darkness, complete dark. Frown, raise the brow, express displeasure. To crush, to destroy. Goal, destination. तो ये थी आपका ग्लॉसरी सेक्शन। अब आ जाइए आप अपने रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन में। बच्चों, ये बहुत इम्पॉर्टेंट पोएम है और ये लास्ट पोएम है आपके सिलेबस की। इसमें रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट आपके सारे लाइन में लिया गया है। पूरे लाइन बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसको 4 हिस्सों में विभाजित किया गया है। पहला है एंड नेचर से लेकर के टू द गोल तक। दूसरा है द क्लाउड से लेके देयर बेस्ट तक। तीसरा है लेट आइज से लेके ब्लॉक द वे। एंड द फोर्थ वन इज़ द वुंडेड स्नेक से लेकर के स्ट्रक लायंस रेग तक। तो देखिए, इसमें आपको क्या करना है, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन देना है, और इसके साथ ही साथ आपको इस पोएम का सेंट्रल आइडिया भी लिखना है। तो जैसा पिछले लेक्चर में मैंने बाकी सब पोएम्स के सेंट्रल आइडिया आपको दे दिया है, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन भी दे दिया है। इस
पोएम का भी आप स्वयं से प्रयास करें लिखने का। नहीं तो यदि आप लिख नहीं पाएंगे तो अंत में मैं इसका भी रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन और सेंट्रल आइडिया आपको अगले लेक्चर में दे दूँगी। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। सो थैंक यू चिल्ड्रन।